Okay, so today we are going to discuss a DDL trigger real time example in SQL Server। आज हम DDL triggers को real time example की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जब हमने पढ़ा था कि DDL triggers क्या होते हैं। जब हमारे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कोई इवेंट वगैरह आपके पास होते हैं तो उनके उनके ऊपर जब कोई आपके पास जैसे हम क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, उसकी बेसिस पर कुछ हमारे पास अगर हमें कोई ट्रिगर बनाना है तो वो कौन से ट्रिगर होते हैं, डीडीएल ट्रिगर होते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डीएलएल चेंजेस जो होती हैं, ठीक है, डीडीएल की जो चेंजेस होती हैं उनको ट्रैक करेंगे, ठीक है। ट्रैक द डीडीएल स्टेटमेंट विच इज़ फायर्ड, हु हैज़ फायर्ड द डीडीएल स्टेटमेंट, ये देखेंगे कि किसने वो डीडीएल स्टेटमेंट फायर की है। और व्हेन द डीडीएल स्टेटमेंट इज फायर, किस तरह से वो डीडीएल स्टेटमेंट फायर हुई है, कब फायर हुई है। ब्लॉक द यूजर फ्रॉम डूइंग सम डीडीएल चेंजेस लाइक ड्रॉप टेबल प्रोसीजर वगैरह। अलाउ द डीडीएल चेंजेस ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड विंडो, दैट इज ड्यूरिंग पर्टिकुलर आवर्स ऑफ अ डे। सो इन सब को करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड सम टेबल एंड डेटाबेस एंड देन वी हैव टू क्रिएट दैट particular DDL trigger. So first of all, what I am going to do, I will be using a database. So in this case I will be creating a new database. So here I am going to create a database. Let's name it create database, and let's name this DDL real DDL DDL underscore real time। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं और लेट्स यूज दिस database DDL underscore real time। So we are going to use this database. So now what we am to so what I am going to do here, I will create a table in this uh, database. Let's say table audit, and here I am going to store some information that I want to track. Let's say I want to track the database name and varchar. Let's have it and varchar 250, and let me copy paste. So here I am going to store the table name. Here I am going to store the event type. Then login name, किसने जो है वो ट्रिगर आपके पास क्रिएट किया। और एसक्यूएल कमांड के हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही थी, तो एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पर भी हम nvarchar रख लेते हैं, nvarchar 250, and lastly we are going to store the date, audit date and time। so उसके लिए हम डेट टाइम को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द टेबल। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाई और उस डेटाबेस के अंदर अब मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर दिया है। So now what I am going to do here, now I will create a trigger that will track these values. So first of all, let's type in the create trigger, and let's name this as tr audit underscore change। okay, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ on। we have already covered all these things in the previous videos, you can see। so I am going to use the server because I am creating a server scope DDL trigger। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर देता हूँ कि for create table comma alter underscore table comma drop underscore table। तो अब इन सब कमांड्स के लिए जो है ना ये ट्रिगर लिख रहे हैं, begin, and here I am using declare underscore at the rate event data xml select at event
data equals to event data method. Okay, after that, what I am going to do, I want to insert data into the table audit that I just created before this. So this is the database, table name is table audit, insert into table audit, टेबल ऑर्डर्ड। और उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बता देंगे कि कौन कौन वैल्यूज हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर डेटाबेस नेम लिया था, कॉलम्स, डेटाबेस नेम, टेबल नेम, और हमने कौन कौन सी फील्ड बनाई है यहाँ पर, इवेंट टाइप, और यहाँ पर आकर हमने और क्या बनाई है, यहाँ पर हमने बोला है लॉगिन नेम एसक्यूएल कमांड, and lastly we have stored the audit date time, and after that we have to provide values for this, and I will be passing values through this method that I have called, that is event data. So here I am going to add these values. So here I will type event at the rate event data dot value and value, and here I'm going to type that value. So this is event underscore instance slash database name bracket 1 comma var char 250. So let's copy this for all the values that we have. We have almost, let me, now you can see clearly what I am typing here. So we have the object name, for the table name we will call object name, and for the event type we have the event type. Then we have here login name, that will be login name, and here I'm going to type the SQL command, tsql command, tsql command, tsql command, and this is done. Now we only left here to pass the date, तो get date मेथड को कॉल कर लेते हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पर डेट पास कर लेते हैं. So this is the values here, and this trigger. So this is the trigger we have created. So what we have done, we have created a trigger tr audit change on all server, ठीक है. और यहाँ पर हम टेबल ऑडिट का जो भी हमारा मेथड हमने अभी टेबल एड ऑडिट का जो हमने यहाँ पर बनाया है टेबल, उसके अंदर हम इसके थ्रू वैल्यूज पास कर रहे हैं. सो एग्जीक्यूटेड, एंड यू कैन सी वी आर गुड टू गो, कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है. तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये
इवेंट डेटा फंक्शन क्या है? इवेंट डेटा जो फंक्शन हमारे पास है, ये आपको क्या करता है, जो भी इवेंट आपके पास एग्जीक्यूट होता है आपके पास, उसको एक्सएमएल फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो ये आपके पास जो डेटा रिटर्न करता है वो किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है, ये आपके पास एक्सएमएल फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो हमने इसको एक्सएमएल के थ्रू यहाँ पर गेट किया है वन बाय वन। So now what I am going to give, where I will table create table command, and I will get some data in my table ordered data. So let's say my test, and here I'm going to create a table integer comma name character or varchar. So let's run this command, execute. So you can see हमारे पास invalid object name table ordered. So here, what is the error? So let me go into the server objects, triggers, and this is the TDR name. Let's run this. Okay, so there was some change, there was some error in my uh, trigger code. So let me modify it, the new, and what I am going to do, I have to define which database it belongs to. So हमारे पास database है ddl underscore real time dot table ordered. Real time dot dbo dot table ordered. So create this table, creating this uh, trigger again. So there is no error. Let's go to the server triggers and refresh this. So I'm going to disable this one and also disable this one, and that we will run the previous one. So let's create this table again, execute. So now you will see कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है one row affected. So let's see कि what we have gone here, क्या हमारे पास टेबल बना है या नहीं। तो अगर हम DDL रियल टाइम में जाते हैं और यहाँ से अपडेट करते हैं, सो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर माई टेस्ट वन टेबल बन गई है। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर जाके टेबल बन गई है, और क्योंकि हमने इसके थ्रू क्या करना था, हमने यहाँ से ट्रैक करना था हमारे पास जितनी भी यहाँ पर चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ पर अब हम अपना टेबल जो हमारा ऑडिट वाला है उसको कॉल करते हैं और देखते हैं हमारे पास वहाँ पर क्या रिजल्ट मिला है। तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी रिजल्ट ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, वी हैव ओनली गॉट द डेट। Okay, so there was some error in my trigger. So basically, I have to type that in capital case, otherwise it will not generate the values. So let me change this, and now I'm going to type this as new one, and let's save this and execute this, connect, and now my trigger has been executed. So let me refresh my triggers, and here now I have two triggers, new one, and now I want this new to be deleted. And here on the database of DDL real time we were applying some things. So I will select this database, use DDL underscore real time, execute.
So now I'm using this database, and let's apply some coding like my table. I'm going to create a table, and this table will have ID. So this is the integer. Let's say I am going to create a name property here also, vachar 50. So let's create this table, and we are going to get a one row affected. Now select all from my table audit, and select this and execute this. Now you can see कि we are getting the record. देखिए database का name हमारे पास क्या था, DDL real time. टेबल का नाम क्या था, माई टेबल. क्रिएट टेबल का इवेंट था. ये हमारा लॉगिन नेम आ रहा है. यहाँ हमारी एसक्यूएल की कमांड आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास डेट और टाइम आ रहा है कि किस टाइम पे हमने ये रिकॉर्ड को जो है ना लॉग किया है. ठीक है. इसी तरीके से अब मैंने अगर यहाँ पर ड्रॉप कमांड लगाई, लाइक मैं कहता हूँ ड्रॉप टेबल माय टेबल, जो अभी मैंने टेबल बनाया है, तो ड्रॉप दिस टेबल, execute, and now if I go to the table audit, you will see कि I have another record here that is saying me कि मैंने ड्रॉप किया है ये टेबल, और किस टाइम पे टेबल पे मैंने ड्रॉप किया, इस टाइम पे मैंने टेबल को ड्रॉप किया है, और किसने ड्रॉप किया है यहाँ पर उसका लॉगिन नेम भी अपेयर हो रहा है. इसी तरीके से जब मैंने आपको बताया था, तो हमने जो है ये इवेंट जो अप्लाई किया था वो क्रिएट पे, ड्रॉप पे. तो हमने ये जो इवेंट, ये जो हमने ट्रिगर डिफाइन किया था, ये हमने ड्रॉप पे, क्रिएट पे और अल्टर के लिए डिफाइन किया था. तो अब जब भी हम कोई ड्रॉप की कमांड या अल्टर की कमांड या क्रिएट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे अपने सर्वर से, तो हमारे पास वो लॉग जो है वो हमारे टेबल ऑडिट के टेबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, जिसमें हम डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम, इवेंट टाइप, लॉगिन नेम, एसक्यूएल की कमांड, और साथ के साथ जो हमने जिस टाइम पे ये डेटा ऐड की है उसका जो लॉग टाइम है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हमने सर्वर पे लगाया, तो ये सर्वर में जितनी भी डेटाबेसेस हैं उसके लिए अप्लाई होगा. और साथ के साथ हमने यहाँ पर इवेंट डेटा का एक मेथड यूज़ किया है जो हमें XML में ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है, और उससे एक्सट्रैक्ट करके हम वो डेटा हमारे टेबल ऑडिट के डेटा के अंदर पास कर रहे हैं. सो आज के इस लेक्चर में हमने रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू सीखा कि हम DDL ट्रिगर की मदद से किस तरह से अपने टेबल के अंदर लॉक कर सकते हैं चेंजेस को, और किस तरह से उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो आज के इस लेक्चर में इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.